প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বৃহৎ মন্তব্য পেহেলগাম কাণ্ডৰ লগত জড়িত দোষী কোনো সাৰি যাব নোৱাৰিব পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তত থাকিলেও বিচাৰি উলোৱা হ'ব আৰু তেওঁলোকে যিমান ভাবিছে তাতকৈ বেছি শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব ভাৰতৰ লগত এই অন্যায় কৰা কোনো ব্যক্তিয়ে শান্তিত থাকিব নোৱাৰিব কাকো শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে ইয়াৰ উপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তলৈ সবিশেষ তথ্য মন কি বাতত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে যে পৃথিৱীৰ যি স্থানতে নাথাকক কিয় সকলোৰ পৰাই লৈ অহা হ'ব শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব ভাৰতৰ লগত কৰা এই অন্যায় প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব আৰু ভাৰতৰ লগত এই অন্যায় কৰা কাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব কোনো শান্তিত থাকিব নোৱাৰিব বুলি মন কি বাতৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে যিহেতু ভাৰতৰ লগত যি অন্যায় কৰা হ'ল ভাৰতৰ লগত অন্যায় কৰা কোনো ব্যক্তিয়ে সাৰি যাব নোৱাৰিব কোনো পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী সাৰি যাব নোৱাৰিব সকলোৱে পাব শাস্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰিছে মন কি বাতৰ জৰিয়তে এই বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে পৃথিৱী যতেই লুকাই নাথাকক কিয় এটা এটাকৈ বিচাৰি উলোৱা হ'ব কোনো প্ৰান্ততে লুকাই হাৰিব নোৱাৰিব পেহেলগাম কাণ্ডত জড়িত কোনো দোষী সাৰি যাব নোৱাৰিব যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰাই বিচাৰি উলোৱা হ'ব আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়া হ'ব দোষীয়ে কল্পনা কৰাতকৈও অধিক শাস্তি পাব কোনো সাৰি যাব নোৱাৰিব কোনো শান্তিত থাকিব নোৱাৰিব ভাৰতৰ সৈতে এনে কাণ্ড কৰা কোনো ব্যক্তিয়ে শান্তিত থাকিব নোৱাৰিব কোনো দোষীয়ে শান্তিত থাকিব নোৱাৰিব পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক ভাৰতৰ পৰা উৎখাত কৰা হ'ব মন কি বাতৰ জৰিয়তে মোদীৰ বৃহৎ মন্তব্য আৰু মোদীৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে ভয়ত কঁপিছে এতিয়া পাকিস্তান এতিয়া ভয়ত কঁপিছে পৃথিৱীৰ যতেই লুকাই নাথাকক কিয় এটা এটাকৈ বিচাৰি উলোৱা হ'ব কোনো ৰেহাই নাপাব ভাৰতৰ লগত কৰা এই কাণ্ড ভাৰতৰ লগত কৰা অন্যায় প্ৰত্যুত্তৰ শীঘ্ৰে দিয়া হ'ব পেহেলগাম কাণ্ডৰ লগত জড়িত কোনো দোষী কোনো দুৰ্বৃত্ত সাৰি যাব নোৱাৰিব দোষীয়ে কল্পনা কৰাতকৈও অধিক শাস্তি লাভ কৰিব ভাৰতৰ সৈতে এনে কাণ্ড কৰা কোনোৱে শান্তিত থাকিব নোৱাৰিব কাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব যিমান কল্পনা কৰিছে দোষীয়ে তাতকৈও অধিক শাস্তি দিয়া হ'ব দোষীক বা দুৰ্বৃত্তক পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক ভাৰতৰ পৰা উৎখাত কৰা হ'ব কোনো থাকিব নোৱাৰিব ভাৰতত পৃথিৱীত যতেই লুকাই নাথাকক কিয় এটা এটাকৈ বিচাৰি উলিওৱা হ'ব যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰাই বিচাৰি উলিওৱা হ'ব দোষীক বা দুৰ্বৃত্তক যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰাই বিচাৰি উলিয়াই শাস্তি দিয়া হ'ব পৃথিৱীৰ ক'তো লুকাই সাৰিব নোৱাৰে পৃথিৱীৰ কোনো এনে স্থান নাই য'ত লুকাই সাৰিব পাৰিব মন কি বাতৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে মাটিৰ পৰা বিচাৰি হ'লেও সন্ত্ৰাসবাদী শেষ কৰিম বুলি উল্লেখ কৰিছে ভয়ংকৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিম সন্ত্ৰাসবাদী পেহেলগামত যি সংঘটিত হ'ল সেই সংঘটিত হোৱা কাণ্ডক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে ইতিমধ্যে ভাৰত সন্ত্ৰাসবাদী য'তেই নাথাকক কিয় তাৰ পৰাই বিচাৰি উলোৱা হ'ব আৰু কল্পনা কৰাতকৈও অধিক শাস্তি দিয়া হ'ব যিমান কল্পনা কৰিছে দোষীয়ে তাতকৈও হাজাৰ গুণ বেছি শাস্তি দিয়া হ'ব পৃথিৱীৰ কোনো প্ৰান্ততে বা কোনো স্থানতে লুকাই থাকিব নোৱাৰিব এটা এটাকৈ বিচাৰি উলোৱা হ'ব আৰু প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে ভাৰত পেহেলগামৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালে উচিত ন্যায় পাবই লাগিব বা উচিত ন্যায় পাবই দোষীয়ে যেতিয়া শাস্তি পাব তেতিয়াই পেহেলগামৰ যি ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ন্যায় পাব বুলি উল্লেখ কৰিছে মন্তব্য কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰিছে ভাৰতৰ সৈতে কৰা এই অন্যায় প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্ততে নাথাকক কিয় য'তেই নাথাকক কিয় তাৰ পৰাই দোষীক বিচাৰি উলোৱা হ'ব আৰু দোষীয়ে যিমান কল্পনা কৰিছে তাতকৈও অধিক শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰাই বিচাৰি উলোৱা হ'ব আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে কাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব যিসকলে এই কাণ্ড কৰিলে দুৰ্বৃত্তক সাৰি যাবলৈ দিয়া নহ'ব কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্তব্য আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं उन्हें न्याय मिलेगा न्याय मिलकर रहेगा इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है
भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए, और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं, तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं
कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में